16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया, 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदरलाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000, 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चों, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को, मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट है, जैसे उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोले नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला। मिलिट्री के जनरल जैन चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया, लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों, तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी गई। अच्छा, फिर ये बोलते नहीं रिपोर्ट झूठ है, रिपोर्ट सच है। और रिपोर्ट की सच्चाई की एक बात आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, सुन लो आप। किसने कहा था ये देख लो आप। नेहरू ने, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, नेहरू ने चौधरी को 27 दिसंबर 1948 को लिखा। अब जिसको अंग्रेजी आती जरा समझ जाइए, मैं मुख्तसर से तर्जुमा कर दूंगा। नेहरू ने लिखा कि हैदराबाद इज अ बिग एंड टिकलिश प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ. It becomes even more important from it are all India implications and even some international implications. It has become the touchstone of our treatment of the minorities, more especially the Muslims. Whatever the facts might be, there can be no doubt that Muslims not only in Hyderabad but outside believe that the Hindus of Hyderabad, or some of them, have behaved very badly towards the Muslims after the surrender. The Muslims of Hyderabad are completely down and out. To some extent, this is inevitable because they have suddenly lost the dominating position they had. They cannot get back, but it is highly desirable from the larger point of view to treat them as generously as possible and to make them feel that they have a definite place in the scheme of things. The solution of our minority problem largely depends upon the issue in Hyderabad. फिर नेहरू आगे लिखते हैं, for various reasons Hyderabad has had a particular place in the Middle Eastern countries. This was partly due to certain benefaction that the Nizam's government used to give. For this and other reasons, these Middle Eastern countries took a great deal of interest in Hyderabad. Even other countries in Europe and in America have taken a keen interest. We function thus in Hyderabad on the world stage, and the whole question of our treatment of minorities is the issue. Pakistan, of course, will make the most of anything it can get hold of against us. फिर आगे नेहरू ने लिखा, a very large number of Muslims in Hyderabad depended on government employment. If they find that this is close to them, they will despair and probably take to communist methods. फिर नेहरू आगे लिखते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचेगी कि नेहरू ने क्या कहा। नेहरू ने कहा कि my own impression is that much of the trouble in Hyderabad on the part of Hindus was due to the Arya Samaj elements as well as certain RSS elements.
The Arya Samaj in Hyderabad has been for many past years a very troublesome body and has done a lot of mischief. The Hindu Mahasabha also, as usually functioning from Maharashtra, has done the same in past years and added to the political and communal difficulties. These elements will no doubt try their best in the present circumstances to carry on their old ways, but with added vigor. This should be watched carefully. I gather an impression, how far it is correct I do not know, that the retaliation or whatever it was against the Muslims took place far more, had relatively suffered less from the Razakar atrocities. If this is true, this leads me to think that the special elements from inside Hyderabad or outside were largely responsible for their misdeeds. ये कहां पे बोला नेहरू ने? SWJN Volume 9, page number 275, 276. ये नेहरू ने कहा. ये बोलते, अच्छा फिर ये सबके सब बोलते हैं कि मुसलमान पुलिस सेक्शन से पहले मुसलमानों में रजाकारों ने भी हिंदुओं पर जुल्म किया और हिंदू भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ. ये कोई इनकार नहीं कर सकता, ये तारीख का हिस्सा है. पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट से कह रहा हूं मैं. अगर बयान करूंगा, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़ूंगा, तो तुम यहां से रोते हुए नहीं जाओगे, हिचकियां लेकर जाओगे अपने घरों को. अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट की 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो पूरा मजमा हिचकियां लेकर अपने घरों को जाएगा. मगर मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमको उम्मीद देना चाह रहा हूं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, वो हमारे लिए फख्र का और हमारे लिए खुशी की मिसाल है. हम उस खुशी को बरकरार रखेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को पढ़ो. और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया. हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अपने गांवों में, घरों में भी रखा. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो मिसाल हमको पेश करना है. और यह भी मालूम हुआ कि शोलापुर में दलितों की जमीन थी. दुर्रा लोगों ने दलितों की जमीन छीन ली, उन पर जुल्म किया. बताओ कौन थे वो लोग? वो दुर्रा लोग कौन थे? बोलो मेरे को. आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस जमाने में बल्कि जब एक तारीखी चीज मैं भूल गया, आपको बताऊंगा. जब निजाम हुकूमत हिंद से बात कर रहे थे, तो जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी ने एक खत लिखा कासिम रजवी को. 25 दिसंबर 1947 को मौलाना अबुल आला मौदूदी ने पाकिस्तान से खत लिखा कासिम रजवी को और कहा कि अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा कासिम रजवी, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा. मौलाना मौदूदी ने अपने खत में लिखा कि एग्रीमेंट करो, हुकूक हासिल करो मुसलमानों के लिए, तालीमी, समाजी, उनके तहफ्फुज के लिए एग्रीमेंट करो. मगर कासिम रजवी तैयार नहीं थे. कासिम रजवी को जुनून चढ़ चुका था. कासिम रजवी ने तकरीर करके कहा कि मैं दिल्ली के लाल किले पर सल्तने आसिफ जाही का झंडा लहराऊंगा. ये कोई बात है? कोई अज़ा हो रही.